آج ہم پڑھیں گے جی ثلاثی مجرد سے اس میں ضرب بنانے کا قاعدہ. کس کا جی؟ ثلاثی مجرد سے اس میں ضرب بنانے کا قاعدہ. کس کا؟ ثلاثی مجرد سے اس میں ضرب بنانے کا قاعدہ. اس میں ضرب کو مضارع معروف سے بناتے ہیں. اس میں ضرب کو مضارع معروف سے بناتے ہیں. اس میں ضرب کو مضارع معروف سے بناتے ہیں. اس میں ضرب کو مضارع معروف سے بناتے ہیں. علامت مضارع کو حذف کر دیتے 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 ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت میں ضرب لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم لگا دیتے ہیں. علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں. علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. اس کی جگہ علامت اس میں ضرب میم مفتوح لگا دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. فا کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو. تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. صحیح محموز مضاف اجوب میں. صحیح محمود مضاف اجوب میں. اگر مضارع کے عین کلمہ پر اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. اگر مضارع کے عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو تو اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. ہاں. اور اگر ضمہ ہو تو اس کو فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو تو فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو اسے فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو اسے فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اگر ضمہ ہو تو اسے فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور لام کلمہ پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن لگا دیتے ہیں. لام کلمہ پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن لگا دیتے ہیں. لام کلمہ پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن. اب دیکھو ذرا یا علامت مضارع اس کو گرا دیا. اس کی جگہ میم مفتوح لے آئے. دعاد ہے فا کلمہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا. اور چونکہ یہ صحیح ہے چونکہ یہ کیا ہے عین کلمہ پر کسرہ ہے اور یہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور با ہے لام کلمہ اس کو اس پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن لگا دیں گے تو یادریبو سے کیا بن جائے گا مدربون. پھر دیکھ لو یادریبو یا ہے علامت مضارع دعاد ہے فا کلمہ را ہے عین کلمہ با ہے لام کلمہ. یا علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. اس کی جگہ میم مفتوح لگا دیں گے. دعاد ہے فا کلمہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. را ہے عین کلمہ اور یہ ہے صحیح. یہ کیا ہے یہ کیا ہے صحیح. دعاد را با یہ صحیح ہے. اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں. اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ ایک جنس کے دو حرف ہے. یہ ہے صحیح. عین کلمہ پر کسرہ ہے تو یہ کیا ہوگا برقرار رہے گا. عین کلمہ پر کسرہ ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں ضرب میں بھی برقرار رہے گا. اور لام کلمہ پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن لگا دیں گے تو یادریبو سے کیا بن جائے گا مدربون. یفتح یا علامت مضارع ہے فا کلمہ ہے تا عین کلمہ ہے اور ہا کیا ہے لام کلمہ ہے. یا علامت مضارع اس کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ میم مفتوح لگا دیں گے. فا کلمہ ہے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. تا ہے عین کلمہ اور یہ ہے صحیح. اس کے حروف اصلیہ ہیں فا تا ہا. ان میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. عین کلمہ پر مضارع میں عین کلمہ پر فتح ہے اس میں ضرب میں برقرار رہے گا. اور ہا ہے لام کلمہ اس پر اسمیت کی علامت تنوین تمکن لگا دیں گے تو یفتح سے کیا بن جائے گا مفتح. یفتح سے کیا بن جائے گا مفتح. ینصر یا علامت مضارع اس کو حذف کر دیں گے. اس کی جگہ میم مفتوح لگا دیں گے اور نون ہے فا کلمہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. صاد ہے عین کلمہ اور اس پر آیا ہوا ہے ضمہ اور یہ ہے صحیح. یہ کیوں صحیح ہے
नून स्वाद रा इसके हरूफ असली है, इनमें ना हरफ इल्लत है, ना हमजा है, ना एक जिन्स के दो हरफ है। ठीक है जी। तो आइन कलमा पर दम्मा आ गया मुजारे में, इसको फतह से तब्दील कर देंगे। इसको किससे तब्दील कर देंगे? इसको किससे तब्दील कर देंगे? फतह से तब्दील कर देंगे। और रा एलाम कलिमा, इस पर इसमियत की अलामत तनवीन तमक्कुल लगा देंगे। तो यान शुरू से क्या बन जाएगा? यान शुरू से क्या बन जाएगा? यान शुरू से क्या बन जाएगा? मनसरून। और ये बात एक मरतबा फिर ज़रा रिपीट कर लें ताकि आपके ज़हन में बाद में पक्की हो जाए। आगे जब हम इंशाअल्लाह मामूज़ पे जाएंगे, मिसाल अजवफ नाकिस लफ़ीम में जब हम जाएंगे तो ये बात आपको बड़ा काम देगी इंशाअल्लाह, और वहाँ पर इसकी मिसालें भी आ जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़बर करवा दूँगा आपको। अच्छा जी, सही मामूज़ मुज़ाफ़ अजवब में, सही मामूज़ अगर मुज़ारे के आइन कलमा पर फ़तह या कसरा हो, अगर मुज़ारे के आइन कलमा पर फतह या कसरा हो तो इसमें ज़रब में बरकरार रहेगा, तो इसमें ज़रब में बरकरार रहेगा, तो इसमें ज़रब में बरकरार रहेगा। और अगर ज़म्मा हो तो उसको फ़तह से तब्दील कर देंगे, और अगर ज़म्मा हो तो उसको तब्दील कर देंगे, और अगर ज़म्मा हो तो उसको फतह से तब्दील कर देंगे, और अगर ज़म्मा हो तो उसको फतह से तब्दील कर देते हैं। फतह से तब्दील कर देंगे। मिसाल से मुतलकन इसमें ज़रब के आइन कलमा पर कसरा आएगा, मिसाल से मुतलकन इसमें ज़रब के आइन कलमा पर कसरा आएगा। वहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि मुज़ारे के आइन कलमा पर फतह है, ज़म्मा है, कसरा है। जब मिसाल से आएगा तो मुतलकन इसमें ज़रब के आइन कलमा पर क्या आएगा? कसरा आएगा, क्या आएगा? कसरा आएगा, क्या आएगा? कसरा आएगा। नाकिस लफीफ से मुतलकन, नाकिस लफीफ से मुतलकन यानी नाकिस की जो नाकिस से जब इसमें ज़रफ़ आएगा या लफीफ से इसमें ज़रफ़ आएगा उसमें भी आइन कलमा को नहीं देखेंगे। जैसे हमने सही में देखा, जैसे मामूज़ मुज़ाफ़ और अजवम में देखेंगे, वैसे नाकिस और लफीफ में नहीं देखेंगे। नाकिस और लफीफ से मुतलकन इसमें ज़रफ़ के आइन कलमा पर फतह आएगा, नाकिस और लफीफ से इसमें ज़रफ़ के आइन कलमा पर क्या आएगा जी? फतह आएगा, क्या आएगा? फतह आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? फतह आएगा, क्या आएगा? फतह आएगा, क्या आएगा? फतह आएगा, क्या आएगा जी? फतह आएगा। फतह आएगा। सही मामूज़ मुज़ाफ़ अजवफ़ में मुज़ारे के आइन कलमा पर अगर फतह या कसरा हो तो इसमें ज़रब में वो बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा, और अगर ज़म्मा हो तो उसको फतह से तब्दील कर देंगे, फतह से तब्दील कर देंगे। और मिसाल से मुतलकन इसमें ज़रब के आइन कलमा पर क्या आएगा? कसरा आएगा, कसरा आएगा। और नाकिस और लफीफ से मुतलकन इसमें ज़रब के आइन कलमा पर क्या आएगा? फतह आएगा। वहाँ पर मुज़ारे के आइन कलमा की हरकत को देखेंगे नहीं, इसमें ज़रब के सीगे होते हैं 4। कितने होते हैं जी? 4, कितने होते हैं? 4। और इसमें ये नहीं कहते कि ये मुज़क्कर का है या मुअन्नस का, जैसे हम इसमें फ़ाइल में कह रहे थे, इसमें मफ़ूल में कह रहे थे, और पीछे जो अफ़ाल गुजरे उनमें हम कहते थे कि ये मुज़क्कर का है, ये मुअन्नस का है। इसमें ये नहीं करेंगे कि ये मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है, बस इसमें वाहिद तस्निया जमा। क्या कहेंगे जी? वाहिद तस्निया जमा, क्या कहेंगे जी? वाहिद तस्निया जमा, मदरिबुन वाहिद इसमें ज़रफ़, वाहिद इसमें दर्ज मुज़क्कर मुअन्नस का नाम नहीं लेंगे। इसको वाहिद क्यों कहा? इसके आखिर में अलिफ तस्निया नहीं है। ठीक है जी। और इसका जो जमा होता है वो जमा अक्सा होता है, और जमा अक्सा के पहले दोनों हरफ क्या होते हैं? मफ्तू होते हैं। पहले दोनों हरफ क्या होते हैं? मफ्तू होते हैं। हाँ, ये है वाहिद इसमें ज़रफ़। मदरिबुन क्या है? वाहिद इसमें दर्ज, वाहिद इसमें ज़रफ़। और मदरिबानी तस्निया इसमें ज़रफ़, मदरिबानी तस्निया इसमें दर्ज, देख लो, इसके आखिर में अलिफ तस्निया है, इसके आखिर में अलिफ तस्निया है। मदारिबु ये है जमा इसमें ज़रफ़, और इसका जो जमा होता है वो जमा अक्सा होता है। कौन सा जमा होता है? और जमा अक्सा की पहचान बड़ी आसान होती है, पहले दोनों हरफ मफ्तू होते हैं। देखो पहले दोनों हरफ मफ्तू है ना, मदारिबु पहले दोनों हरफ क्या है? मफ्तू है, और तीसरी जगह अलिफ जमा अक्सा आया हुआ है। तीसरी जगह क्या हुआ जी? जमा अक्सा आया हुआ है। और इसमें एक सीगा होता है वाहिद मुस्तकर का। किसका जी? वाहिद मुसग्गर का। और तस्गीर की बड़ी आसान पहचान है, पहले हरफ पर जम्मा है, दूसरे हरफ पर फतह, और तीसरी जगह या तस्गीर है। पहले हरफ पर क्या है? जमा, दूसरे हरफ पर फतह, और तीसरी जगह क्या है? या तस्गीर। जब भी पहले हरफ पर जमा, दूसरे हरफ पर फतह और तीसरी जगह आप या साकिन देखें ना, या तस्गीर, तो समझ आए ये तस्गीर का सीगा। किसका सीगा जी? तस्गीर का। मेरा ख्याल है आप मुझे बता सकेंगे, बता सकते हैं मदरिबुन कौन सा सीगा है? वाहिद इसमें दर्ज, वाहिद इसमें ज़रफ़। मदरिबुन कौन सा सीगा है? वाहिद इसमें दर्ज, वाहिद इसमें ज़रफ़। मदरिबानी तस्निया इसमें दर्ज, तस्निया इसमें ज़रफ़। और मदारिबु जमा इसमें दर्ज, जमा इसमें ज़रफ़। और मुदैरिबुन वाहिद मुसग्गर इसमें दर्ज, वाहिद मुस्तगर इसमें ज़रफ़। मुदैरिबुन। वाहिद इसमें दर्ज। अब हम करेंगे जी इसका तर्जमा। मदरिबुन मारने का एक वक्त या मारने की एक जगह, मारने का एक वक्त या मारने की एक जगह, मदरिबुन मारने का एक वक्त या मारने की एक जगह, मदरिबानी मारने के दो वक्त या मारने की दो जगह, शाबाश। और मदारिबु मारने के सब वक्त जगह और मारने के मारने के सब वक्त या मारने की सब जगह, मारने के सब वक्त या मारने की सब जगह। और मुदैरिबुन
थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। फिर दोबारा बोलेंगे जरा, मदरिबुन मारने का एक वक्त या मारने की एक जगह। मारने का एक वक्त या मारने की एक जगह। मदरिबानी मारने के दो वक्त या मारने की दो जगह। मारने के दो वक्त या मारने की दो जगह। और मदारिबू मारने के सब वक्त या मारने की सब जगह। मारने के सब वक्त या मारने की सब जगहें। और मुदैरिबुन थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। मुदैरिबुन थोड़ा मारने का एक वक्त या थोड़ा मारने की एक जगह। ठीक है जी। अब आप बताएंगे सीगे। अच्छा मौलाना, आपकी नज़र के सामने है मन सरुन, बता सकते हो कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद इसमें ज़रफ़। आपने इसमें ज़रफ़ क्यों कहा? क्योंकि इसके शुरू में इसमें ज़रफ़ की अलामत मीम मफ्तू मौजूद है। यही मीम मफ्तू तो इसमें मफूल में भी थी। वहाँ आप इसमें मफूल बता रहे थे, यहाँ आप इसमें ज़रफ़ बता रहे हो, क्यों? मीम मफ्तू भी थी और आइन कलमा के बाद वाव साकिन भी थी। ठीक है जी। आपने इसको तस्निया क्यों नहीं कहा? अगर ये तस्निया होता तो इसके आखिर में तस्निया का अलिफ भी होता। ठीक है जी। इसके आइन कलिमा पर फतह क्यों है? क्योंकि यह सही है और सही के आइन कलमा पर फ़तह या कसरा हो तो बरकरार रहेगा, और अगर ज़म्मा हो तो इसको फ़तह से तब्दील कर देते हैं। क्योंकि इसके मुज़ारे का आइन कलमा पर ज़म्मा था, इसलिए फ़तह से तब्दील किया। अच्छा जी, आपने कहा ये सही है, कैसे? इसके रुफ़े असलियाँ हैं नून स्वाद रा नासरा। इनमें ना हरफ इल्लत है, ना हमज़ा है, ना एक जिन्स के दो हरफ हैं। आपने इसको तस्गीर क्यों नहीं बताया? अगर ये तस्गीर होता तो तस्गीर के पहले हरफ पर ज़म्मा, दूसरे पर फ़तह और तीसरी जगह या होती, जो कि इसमें नहीं है। आपने जमा क्यों नहीं कहा? जो इसमें ज़रफ़ में जमा है वो जमा अक्सा है। अगर ये जमा अक्सा होता तो इसके पहले दोनों हरफ मफ्तू होते और तीसरी जगह अलिफ जमा अक्सा का होता, और इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा मौलाना, आपकी नज़र के सामने मफ्तानी, बता सकते हो कौन सा सीगा है? सीगा तस्निया इसमें ज़रफ़। आपने इसमें ज़रफ़ क्यों कहा? क्योंकि इसके शुरू में इसमें ज़रफ़ की अलामत मीम मफ्तू मौजूद है। यही मीम मफ्तू तो इसमें मफूल में भी थी। वहाँ आपने इसमें मफूल बताया, या इसमें ज़रफ़ बता रहे हो? इसमें मफूल में मीम मफ्तू भी थी और आइन कलमा के बाद वाव साकिन भी थी। इसको तस्निया क्यों कहा? इसके आखिर में अलिफ तस्निया है, इसलिए इसको तस्निया कहा। इसके आइन कलिमा पर फतह क्यों है? क्योंकि सही है और सही के आइन कलमा पर फ़तह या कसरा हो तो बरकरार रहेंगे, और अगर ज़म्मा हो तो उसको फ़तह से तब्दील कर देंगे। क्योंकि इसके मज़ारे के आइन कलमा पर फ़तह इसलिए बरकरार है। आपने कहा ये सही है, कैसे ये सही है? इसके हरूफ असलियाँ हैं फ़ातहा फ़तहा। इनमें ना हरफ इल्लत है, ना हमज़ा है, और ना एक जिन्स के दो हरफ हैं। आपने इसको तस्गीर क्यों नहीं कहा? अगर ये तस्गीर होता तो तस्गीर के पहले हरफ पर ज़म्मा, दूसरे पर फ़तह और तीसरी जगह या होती, जो कि इसमें नहीं है। आपने इसको जमा क्यों नहीं कहा? जो इसमें ज़रफ़ में जमा होता है वो जमा अक्सा होता है। अगर ये जमा अक्सा होता तो इसके पहले दोनों हरफ मफ्तू होते और तीसरी जगह अलिफ जमा अक्सा का होता, और इसमें ऐसा नहीं है। और मौलाना, आपकी नज़र के सामने मदारिबू, बता सकते हो कौन सा सीगा है? ये सीगा जमा अक्सा का है। आपको कैसे पता चला? इसके पहले दोनों हर्फ मफ्तू हैं और तीसरी जगह अलिफ जमा अक्सा है। मौलाना, आपकी नज़र के सामने सुवैमी, बता सकते हो कौन सा सीगा है? ये सीगा वाहिद मुसगर का है। कैसे पता चला कि ये वाहिद मुसग्गर है? पहले हरफ पर ज़म्मा है, दूसरे पर फ़तह और तीसरी जगह या तस्गीर है। अब आपसे गर्दाने सुनेंगे जी। गर्दान इसमें ज़रफ़ मदरिबुन मदरिबानी मुदारिबु व मुदैरिबुन। गर्दान इसमें ज़रफ़ मासिबुन मासिबानी महासिबु व मुहैसिबुन। गर्दान इसमें ज़रफ़ मस्माउन मस्मानी मसामी मुसैमियुन। गर्दान इसमें ज़रफ़ मफ्ताहुन मफ्ताहानी मफ़ातिहुन मुफ़ैतिहुन। गर्दान इसमें ज़रफ़ मनसरुन मनसरानी मनासिरु व मुनैसिरुन। गर्दान इसमें ज़रफ़ मकरमुन मकरमानी मकारिमु व मुकैरिमुन। और ये तो हमने सुलासी मुजर्रद से पढ़ा जी। गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें ज़रफ़ हमेशा इसमें मफूल के वज़न पर आता है। गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें मफूल का क्या वज़न है? मुकरमुन, मुसर्रफुन, मुतकब्बलुन, मुतकाबलुन, मुजतनबुन, मुनफतरुन, यही वज़न इसमें ज़रफ़ का आएगा। और गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें ज़रफ़ के 3 सीगे होंगे। कितने होंगे जी? 3। मुकरमुन, मुकरमानी, मुकरमातुन, मुसर्रफुन, मुसर्रफानी, मुसर्रफातुन।
اور متقبل متقبلان متقبلاتن، متقابل متقابلان متقابلاتن، منفطر منفطران منفطراتن، مستنصر مستنصران مستنصراتن، مجلوز مجلوزان مجلوزاتن.